class. Welcome back. Welcome back to your maths class. Here in the last class we have started doing our chapter that is multiplication. है ना, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया था ना। पहली क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन जो हमने किए थे वो थे 2 by 1 and 3 by 1 मल्टीप्लिकेशन के। देन हमने देखा था व्हाट इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द मल्टीपल ऑफ 10, 100 and 1000। ठीक है, so today I am going to start today's class. I am going to start with the same concept that what will happen if we have to multiply any given number with the multiple of 10, 100 or 1000, right? Okay, now let us start. So suppose if I have to, so this is example question. Now suppose if I have to multiply a given number, say the number is 28 multiplied by 100. Now suppose this is a question where I have to multiply 28 with 100. अगर 28 को 100 से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 28 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, so what we have to do to multiply 28 with 100, हमने क्या करना होगा, just write down 28 and क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 0 है हमारे पास, so what we will do, we will increase this 2 0 here. So our answer for this question is 2800. Our answer for this question is what, 2800. ठीक है, this is as simple. Now I am going to give you few questions for you to do. Now I want you guys to solve these questions. These 4 questions that I have given on board, I want you guys to solve these questions. Come on, solve the question. See what you have to do. You just have to multiply the number with 100, 10, 100 or 1000. Nothing else that you have to multiply the number with 10, 100 or 1000. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है आपने। And multiplication with 10, 100, 1000 is very easy. What all you have to do is to increase the zero. Just increase the zero. And nothing else. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जीरो इंक्रीज करना है और कुछ भी नहीं, खाली जीरो आपने इंक्रीज कर देना है। Okay, completed. Okay class, now see, so the first question is 28 into 100. ये क्वेश्चन हमने कर लिया 28 का, और 2 जीरो हमने 2 जीरो हमने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 47 एंड देन अ 10। ठीक है, 47 और उसमें हमने क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 47 में 10 मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 47 multiplied 10, that means 47 and 1 0. That means answer is what? Answer is 470. Answer for this question is 470. Now this question 34 into 1000. 34 and what we have to do, just increase these 3 0. 34,000. Next is, now this question is a bit different. 54 multiplied by 20. अब ये क्वेश्चन क्या थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया वहां पे हमने सिर्फ 10, 100 and 1000 से मल्टीप्लाई किया। Now in this question what we have to do, in this question we have to multiply with 20. So कल मैंने आपको बताया था कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं, 2 into 10 20 को हम लिख सकते हैं। तो what we have to do, we have to multiply 54 and 10. Fine, हमने क्या करना, 54 and 2 को first of all we have to multiply and then we will multiply the rest of the numbers. तो सबसे पहले 54 में 2 की मल्टीप्लिकेशन भी will do, 54 में 2 की मल्टीप्लिकेशन
and 5 2s are 10, and just we will increase this 0. So our answer for this question is 1080. Now kids, note it down. Note down करो question को. Then we will move ahead. Note down करिए question को. Completed? Okay, so ma'am is going to erase the board now. ठीक है, मैम अभी ये बोर्ड इरेज करने जा रहे हैं and after that we will move toward the next question. Now class ये 10,100,000 वाले क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गए. ये जो क्वेश्चन थे 10,100,000 वाले, ये तो हमें समझ में आ गए. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू, अब अगला क्वेश्चन जो हमने करना है वो क्या करना है. 10,100,000 वाले क्वेश्चन क्या हो गए, समझ में हमें आ गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मल्टीप्लाई 2 by 2. मीन्स ऊपर भी 2 नंबर और नीचे भी 2 नंबर, तब कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सपोज 24 मल्टीप्लाई बाय 12. If I am taking this number, if I have to multiply 24 and 12, then this will be 1, this will be 10, this will be 1, this will be 10. Right? 24 multiply by 12. Do this question. I know you know how to solve this question. So solve this question. Okay. Completed? Now, if I have to multiply 24 and 12, then I will write 24, put a multiplication sign and 12. अभी क्या what we have to do? This number 2 will be multiplied to 4. Then this 2 will be multiplied to 2. मतलब पहले 1s की प्लेस से और फिर 10s की प्लेस से we will do the multiplication. ठीक है. Now 2 4s are, first of all you will multiply like this. 2 and 4, 2 4s are 8. Then you will multiply 2 and 2. What you will get? 2 2s are 4. Fine. तो ये फर्स्ट लाइन हमने मल्टीप्लाई कर ली. यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड. फोर टूज आर 8 and 2 2s are 4 हमने कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ क्रॉस मार्क हियर and then 4 1s are 4, right, and 2 1s are 2. नाउ क्लास फिर से एक चीज ध्यान से देखने लायक क्या है, वो ये है कि सबसे पहले जब हमने फर्स्ट नंबर को, ठीक है, 1s की प्लेस वाले नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके 48 हमारा आंसर आ गया. देन हमें अगला क्या करना था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. हमने क्या किया, जब फर्स्ट लाइन सॉल्व हो जाती है तो नाउ दिस इज 10s की प्लेस है ना. 12 में दिस 2 इज 1s and 1 क्या है, कौन सी प्लेस है, 10s की प्लेस है. तो अगर वो 10s की प्लेस है तो हमने क्या किया, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. ठीक है. नाउ क्लास दैट्स व्हाई हमने इस 1s वाली जो आंसर हमारा आया 8 के नीचे जो हमारा आंसर आया उसमें हमने क्या लगाया है, उसमें हमने क्रॉस लगाया है. राइट. उस 8 के नीचे जो आंसर आया उसमें हमने क्रॉस लगाया है. 8 4 plus 4 8 and 2 का 2. So the answer for this question is 288. Answer for this question is 288. Now you might be thinking from where we have got this 288. Because what we are doing, we are adding these number up. So 8 plus cross or 8 plus 0 is 8.
4 + 4 8 एंड 2 को 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल क्वेश्चन। ये क्या है? एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। नाउ मूव अहेड। अब इस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी में करना है, देन मूव अहेड। ठीक है? ओके, कितना हो गया? तो कैन वी मूव अहेड नाउ? So I'm going to erase the board. For instance, I'm going to erase the board. Okay. So now erasing the board. Now, moving ahead, moving toward the next question. Next question is 64 by 42. अब इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? रीग्रुपिंग हो सकती है। इस क्वेश्चन में कैरी हमें काउंट करना पड़ सकता है। ठीक है? तो द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 64 by 42। ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है? नाउ 64 by 42, हाउ वी विल डू दिस? 64 by 42, दिस इज द क्वेश्चन। 64 और 42। ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है। तरीका सेम है। वन प्लेस को वन प्लेस से मल्टीप्लाई करना, देन वन प्लेस को 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दीस टू नंबर एंड देन मल्टीप्लाई दीस टू नंबर। ठीक है? चलो करो, डू द क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करिए। नाउ 4 2s are 8, 6 2s are 12। लिख लिया? अभी तक तो कहीं रीग्रुपिंग का सीन हमें नहीं दिख रहा है ना? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ क्रॉस हियर। यहाँ पे वी विल पुट अ क्रॉस। नाउ 4 4s are 16, 4 4s are 16, so for 16 we will write 6 here and we'll give carry 1 at the top. Now 6 4s are 24, 24 plus 1 25 and now add। फिर से समझो कैसे किया। सबसे पहले इस नंबर को हमने हाइड कर लिया। ठीक है? इस नंबर को हाइड कर लिया। सपोज करो कि बस ये सिंगल नंबर हमें मल्टीप्लाई हमने करनी है। तो 4 2s are 8 and 6 2s are 12। फिर क्या हुआ? अब हमने इस नंबर को हाइड कर लिया। तो देखो यहाँ पे जो 4 है वो 10th प्लेस पे, 4 is at 10th place। Now what happened? 4 4s are 16, carry 1, 6 4s are 24, 1 25। Fine. So 8 plus cross will be 8, 6 plus 2 will get 8, 5 plus 1 6 and 2 का we will get 2, क्योंकि कहीं पे कोई रीग्रुपिंग नहीं थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रीग्रुपिंग हुई सिर्फ वन प्लेस पे, वो प्लेस थी ये। नाउ देखो 4 4s are 16 को 6 लिखा, कैरी 1 टॉप पे दिया। फिर 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके 1 हमें बचा, तो दैट 6 4s are 24, 1 25। ठीक है? नाउ हमने, अब जब आपको दोनों पार्ट के आंसर्स मिल जाएंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू ऐड। फिर आपने क्या किया? इन्हें ऐड कर दिया। ओके, मूविंग अहेड। नाउ दिस साइड आई एम गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय यू ओनली। नाउ दिस इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई गेस, बट I know you will be able to solve this. So the question is 23 by 64. Solve this question 23 by 64. ठीक है? ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है।
64. This question will be solved by you guys only. Okay. Now see. We'll write 23 at the top and नीचे we will get 64. 23 ऊपर और नीचे हमें क्या मिलेगा? We will get 64. Okay. Now 23. मैंने छोटा लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना था बट मैम ने क्या किया, छोटा लिख दिया ना बेटा. मिलेगा. What we will do? We'll start from this place. 4 or 3. Now 4 3s are 12. 12 so we will write 2 and we will carry 1 at the top. 4 2s are 8, 1 9. यहाँ पे क्या लगाएंगे? Cross. 6 3s are 18. 18 को 8 carry 1. 6 2s are 12, 1 13. फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ. सबसे पहले हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला? 4 3s are 12. 4 3s are 12 को 302 किया, 12 को 2 लिखा, 1 कैरी टॉप पे दिया. नाउ 4 2s are 8, 8 1 9 हुआ. Now 6 3s are 18, carry 1 top पे. 6 2s are 12, 1 13. अभी what we have to do? We have to add these two number. ऊपर और नीचे वाले नंबर को हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना. चलिए करिए, एडिशन करिए. Do the addition. Completed. Now 2 plus cross 2, 9 plus 8. So adding 9 and 8 you will get 9 और 8 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 17. 17 को we will write 7 and we will carry 3 1 at the top. 3 plus 1 4 and 1. Answer is 1472. Note down these two questions, then we will move with the next question. Okay. Now I'm going to erase the board and we'll do some more questions. Okay, moving toward the next question. Now the next question is, जो अगला क्वेश्चन हमने करना है वो क्या है? 35 by
Now see, 35 and we have to multiply 28. And here we are having 24 and we have to multiply 12 in it. 35 multiply 28 and 24 multiply 12. 8 5s are 40. 8 5, अब क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, so 8 5s are 40. You will get 4 here. 8 3s are 24. 24 plus 4, 28. Put a cross here. 5 2s are 10. Give 1 carry. 3 2s are 6 1 7. Now what? Now you have to add the number. है ना? फिर से समझते हैं कैसे किया. 8 5s are 40 को 0 लिखा, कैरी 4 दिया. 8 3s are 24. 24 में 4 ऐड किया तो 28. एंड 5 फिर यहाँ पे नीचे क्रॉस. 5 2s are 10. कैरी 1. 3 2s are 6 1 7. नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड द नंबर. So 0 plus cross will be 0. 8 plus 0 will give us 8. 7 plus 2 9 will be 980. Now here 4 2s are 8. Okay, तो ये क्वेश्चन में आपने रॉन्ग नोट डाउन कर दिया है ना. Now this question is 241 by 12. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पे 3 प्लेस है हमारे पास. 1s 10s and 100. 3 places are there, right? So we'll start from 2. So 2 से हम स्टार्ट करेंगे तो what we will get? 2 से स्टार्ट करने में 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4. यहाँ पे क्रॉस मतलब बाकी प्रोसेस सारा सेम है. ओनली डिफरेंस इज दैट कि अब आपको 100 प्लेस तक क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई. देन 1 1s are 1, 1 4s are 4 and 2 1s are 2. Now add 2 plus cross 2, 8 plus 1 9, 4 plus 4 8 and with the 2. देखो सारा क्वेश्चन सेम था, बस हमें 100 प्लेस तक क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था. सो नोट डाउन दिस टू क्वेश्चन. कंप्लीटेड. नोट डाउन करो सभी बच्चे, इसको नोट डाउन करेंगे. And if you have already done this question, then you have to match your answer with ma'am's answer, right? आपने अपना आंसर मैम के आंसर के साथ क्या करना है, you have to match your answer here.
here is, I'm going to explain you one question like this. The cost of one toy car is rupees 45. Find the cost of 12 such cars. So what is this? This is a word problem. Question क्या है? The cost of one toy car. एक toy car की cost कितनी है? 45. Find the cost of 12 such car. 12 such car. 12 ऐसी ही 12 cars की cost कितनी होगी? Okay? चलो. Find out the answer. But this is आपको समझना होगा कि वन कार की कॉस्ट दी है एंड मैनी की पूछी है. तो जब वन का कॉस्ट आपको दिया हो, मैनी का पूछे, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट क्वेश्चन? यू हैव टू मल्टीप्लाई, राइट? आपने क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ द स्टेटमेंट इज, cost of one toy car equals to rupees 45. Find the cost of 12. Now, so cost of 12 toy car equals to rupees 45 multiplied by 12. So पता करिए, 45 और 12 को मल्टीप्लाई करके. चलिए पता करिए. फाइंड आउट द आंसर. Multiply. Now class, 5 twos are 10. If carry 1 at the top. 4 twos are 8, 1, 9. Put across, 5 ones are 5. And 5 ones are 5 के बाद 4 ones are 4. Fine. Now add them together. So 0 का 0, 9 plus 5 4 and 4 का 5. एक कैरी आ गया ना यहाँ पे, 9 plus 5 को ऐड किया. So now the answer for this question is rupees 540. So class, आज हमने मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ क्वेश्चन हमने लिए वर्ड प्रॉब्लम्स के. Now class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class with few more questions of multiplication. And as I have told you earlier, these all questions you have to do in your copy. ठीक है? So till then